Yes, good afternoon all. This is Vipul and I'm interacting with both the batches B as well as C. And today's task is assignment number 5. That purely belongs to fifth unit, graph representation of matrices as well as connectivity, cut set, all that things will be included in this particular assignment. Now, my screen is visible to all of you. This is assignment 5. I had already shared this assignment with all of you. Even in the login is there, even your Marwadi login, the assignment is there. Even I had shared this particular with you personally in one of the WhatsApp group. Okay, so yes, but I would like to start the session with one of the query from the Baldeep. Baldeep, yes, Baldeep. Might be you are having query related to fundamental cut set as well as fundamental cut set, is it now? Now you are clear. Now you are clear with the cut set, is it? You just need to understand what we mean by fundamental cut set. Yes or no, Baldeep? Am I audible to you? Yes, sir. Okay. So, what is fundamental cut set, Baldeep? When we are looking to identify a fundamental cut set of the graph, then initially we are looking for first of all we'll be identifying one of the random spanning tree of that graph. Random spanning tree means one of the minimum connected graph of that minimum connected subgraph of the given graph, which includes the entire vertex set. Is it? So we are good with the spanning tree. Now, first of all, we will be identifying a spanning tree, and then after we'll be looking for cut sets. Now, if you look over example 9 is for the cut set, is it? Fundamental cut set, yes. Just be over this particular K5. This is K5, is it? If you wish to identify one of the spanning tree of this particular graph, then it will be very easy that pentagon, the outer pentagon, is one of the spanning tree. Yes or no? Yes, sir. No, it will contain a cycle. Not the entire pentagon, but I just need Sir, we can remove one of the. Yes, any of the one from that pentagon, yes. Is it? कोई भी एक निकाल दे, that particular tree will be spanning tree for this particular graph. अब उसके बाद first of all identify your spanning tree, then try to identify some of the cut sets. Now, if your cut set is having one edge from the spanning tree, if your cut set is having exactly one edge from the spanning tree, उसको हम बोलते हैं branch. If your cut set is having a single branch, exactly one branch, then that particular cut set, उस cut set को हम नया label दे रहे, that cut set is fundamental cut set, as simple as that. अब I'm not sure कि तुझे इसमें कहाँ पे doubt है, पहले तो तू ये बता. You were talking about the vertices. हम यहाँ पे vertices की कोई बात नहीं कर रहे. You were saying कि vertex set के दो पार्ट होने चाहिए. हाँ, वो किस तरीके से? तो पहले तो तू ये बता. मैंने कभी ये नहीं बोला है कि vertex set के दो पार्ट होने चाहिए. पर if you had Googled that particular thing और कहीं पे वहाँ पे तुझे ऐसा मिला है कि partition must be there, two different partition must be there for the graph, then वो किस तरीके से वो भी मैं तुझे बता दूं. When you are removing some of the edges from the graph of it, at that time हम जब भी कोई edge निकाल रहे ग्राफ में से एक या एक से ज्यादा, तो vertices तो वही है, vertices तो सारी वही है, वो उसमें से कोई कुछ नहीं निकलने वाला. पर ग्राफ अगर डिस्कनेक्टेड होने वाला है ना, ग्राफ we are looking to disconnect that particular graph, तो ग्राफ के कम से कम दो कंपोनेंट तो बनने ही वाले. Is it? In one of the component we are having 2-3 vertices and rest of the vertices will be surely in the second component. तो उस तरीके से कहीं पे तुझे लिखा मिल सकता है in the Google or in some of the other website that vertex set will be divided into two parts. Is it? But that is not the way I had defined the definition. उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर ऐसे हमने नहीं किया. हमने क्या किया, कोई कट सेट उठा, उसमें अगर एक ही ब्रांच है, ब्रांच के लिए स्पानिंग ट्री चाहिए, स्पानिंग ट्री तो पहले आइडेंटिफाई कर. उस स्पानिंग ट्री में जो तूने एज यूज की हुई है, उस
सारी एज में से कोई एक एज, एग्जैक्टली एक ही एज तेरे कट सेट में है, तो उस कट सेट को बोलना है फंडामेंटल कट सेट, एज सिंपल एज दैट। अभी पूछ, तेरा क्वेश्चन पूछ, जो भी डाउट है पूछ, प्लीज बिंदास पूछ। सर तो जैसे सर हमने फर्स्ट स्पैनिंग ट्री आइडेंटिफाई कर दिया, हाँ ठीक है सर, जैसे इसमें सर पेंटागन बनेगा जिसमें से एक कोई भी मतलब एज हम हटा सकते हैं, तो हाँ। उसका स्पैनिंग ट्री हो गया। हाँ, सर उसमें से फिर हमको मतलब कोई भी एक एज और हटा के मतलब उसको डिस्कंटिन्यूअस करना है। स्पैनिंग ट्री कितनी मिलती है पता है तुझे? कंप्लीट ग्राफ, ये तो कंप्लीट ग्राफ है K5 है जिसकी हम बात करते हैं। कंप्लीट ग्राफ के लिए n raised to n minus 2, that is 5 raised to 3, 125 स्पैनिंग ट्री मिलेगी इस ग्राफ की। 125 पे 125 different spanning trees are there, is it? So कोई एक स्पैनिंग ट्री तू चूज ही कर ले, और उसी के हिसाब से मुझे कुछ चाहिए कि भाई कितने फंडामेंटल कट सेट तू आइडेंटिफाई कर पा रहा है, दैट्स ऑल। आई एम नॉट लुकिंग फॉर ऑल द फंडामेंटल कट सेट, इज इट? मुझे सिर्फ ये देखना है कि फंडामेंटल कट सेट वाला कंसेप्ट तेरे दिमाग में है या नहीं है। हर किसी के लिए ये नहीं करना। ठीक है, ठीक है अब बड़ी बात सर। समझ। जैसे हमने सर एक जैसे पेंटागन बना दिया, हाँ, मतलब पेंटागन में से एक निकाल के हाँ बना दिया स्पैनिंग ट्री। ठीक है सर। तो हाँ। सर अब जैसे ए वाला जो वर्टेक्स है, हाँ, रुक जा, मैं हेल्प करूं। इट विल बी गुड इफ आई एम ड्राइंग, वरना नहीं समझ में आएगा, वरना थोड़े कंफ्यूज ही होते रहेंगे, तू और बाकी के बच्चे भी कंफ्यूज होंगे। तो रुक जा, लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन। इस ग्राफ को उठा ही लूँ मैं, कंट्रोल सी, तो यहाँ पे पेस्ट ही कर दूँ, कंट्रोल बी, थोड़ा बड़ा कर दूँ, और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। चल now let me alter my screen. Let me stop this and let me start one knot. देख तो अभी स्क्रीन दिख रही है प्रदीप? यस सर, वन नॉट Yes, के sir. साथ, इज इट? अब चल फंडामेंटल वाली बात हम यहाँ Yes. से ठीक से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि तेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन Yes, रही sir. ना। लेट मी लेबल द वर्टाइसेस, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी एंड ई, ठीक है, दिस आर द वर्टाइसेस। Now, let's identify one of the spanning tree. A, then after E, सर देन डी, yes, then D, सी then एंड डी। C and B, is it? तो ऐसी तो 125 different spanning tree हम बना सकते हैं, वो हमको पता है। यस Is it? This is one of the random. तो if you are finalizing, अगर तू डिसाइड कर रहा है कि यही तेरी स्पैनिंग ट्री है इस ग्राफ के लिए, तो उसको थोड़ा मैं हाईलाइट करूँ। चल इसमें आ गई मेरी पेन, कहाँ गई है? इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर दूं। Yes, there it is. There it is. There it is. Here it is. This is our spanning tree, okay? अब सर सोच। इतना करने के बाद सर हम एजेस लेबल कर देंगे पहले। हाँ चल, एजेस भी एक ही करूंगा, चल मैं एक ही के लिए करूंगा, तुझे समझ में आ तो जाएगा। जैसे ए और ई को अपन ने E1 मान लिया, This is E1, this is E2, this is E3 and this is E4, okay? अब मेरे साथ रहे। If I am denoting one of the cut set like that, E1, E2, E4 and E3, this is one of the cut set, you must be agree with me, यस is it? क्योंकि इसका कोई भी सबसेट तू ले वो कट सेट नहीं बनेगा। यस सर। None of the proper subset of this particular set is going to act as a cut set. The removal of this set from the graph will surely convert this connected graph into disconnected graph. तो ये वाला एक कट सेट है, ठीक है, एक कट सेट है, सिर्फ कट सेट। अब इसको मैं फंडामेंटल कट सेट भी बोल सकता हूं। दिस इज एक्चुअली फंडामेंटल कट सेट। क्यों? अब देख इस पूरे सेट में तू देख, क्योंकि सर इसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो काम नहीं करेगा एज अ कट सेट। नहीं अभी तो हाँ कट सेट के बारे में सी, कट सेट ये सही है, कट सेट तू समझ चुका। अब आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल कट सेट। ये कट सेट तो है, वी ऑल एग्री विद दिस, दिस इज कट सेट, इज इट भवदीप? यस सर।
अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा ये फंडामेंटल कट सेट है, क्यों, ये मैं तुझे समझा रहा हूं, देख ये मैं तुझे समझा रहा हूं, थोड़ा ऑब्जर्व कर। E1 E2 E4 E3 ये जो एजेस है सारी, दिस इज E1 E2 E3 E4 मैंने कहीं पे ली नहीं, सपोज दिस इज E5 E6 E7, वो मैं यहां पे भी लेबल कर दूं, दिस इज E7, दिस इज E6, दिस इज E5। अब इस कट सेट में तू अगर देख तो कितनी ऐसी एजेस है, कितनी एजेस ऐसी है कि जो तेरे स्पानिंग ट्री में है, वो एक ही है। एक ही है। जो भी स्पानिंग ट्री की एजेस है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। तो यहां पे ब्रांच कौन कौन सी है? E1 इज ए ब्रांच, E5 इज ए ब्रांच, E6 इज ए ब्रांच, E7 इज ए ब्रांच। E7। इसके अलावा जो भी बाकी की एजेस है, देख जैसे कि E2 E3 E4 और उस दोनों का नाम बाकी है, दैट इज E8 एंड दिस इज E9, इज इट? ये E2 E3 E4 E8 E9 आर नोन एज ए कॉर्ड्स। उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्ड्स। तो अब तू अगर जाके फंडामेंटल कट सेट की डेफिनेशन देखे ना, तुझे पता चल जाए एक ऐसा कट सेट तुझे आइडेंटिफाई करना है कि जिसमें एग्जैक्टली एक ही ब्रांच आ रही हो। देख इसमें E1 इज ए ब्रांच, अब तू देख E2 E4 E3 ये सारी कॉर्ड है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। इज इट? अब एक और मैं कट सेट डिफाइन कर रहा हूं, देख, और तू मुझे बताएगा कि क्या वो फंडामेंटल कट सेट होगा कि नहीं। मैं सी को फोकस कर रहा हूं, ये वर्टेक्स सी को फोकस कर रहा हूं, उसमें कितनी एजेस है? दैट इज E6, देन आफ्टर E8 E7 E9 एंड E7। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज अ कट सेट? क्या ये कट सेट है? हाँ है, पक्का सर कट सेट है, कट सेट है, एग्री ना? यस, ये फंडामेंटल कट सेट नहीं है। क्यों नहीं है बता? क्योंकि मोर देन वन ब्रांचेस। यस, इसमें E6 और E7 दोनों में एक से ज्यादा ब्रांचेस इंक्लूडेड है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इतना ही छोटा सा ही बात है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यस, बहुत ही आसान। तो सर ए और बी जैसे E1 और E7 ये दो ही इसमें फंडामेंटल कट सेट होंगे। करेक्ट। पर फंडामेंटल कट सेट वो तू देख पाएगा, काफी निकाल सकते, काफी निकाल सकते। तो ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बाउंड्री मतलब जहां से हम स्टार्ट करते हैं जहां पे एंडिंग होता है, हाँ, वो दो ही फंडामेंटल कट सेट होंगे, बाकी नहीं होंगे। बोल सकते हैं, इस ग्राफ के लिए बोल सकते कंप्लीट ग्राफ है, और कोई ग्राफ के लिए क्या ये स्टेटमेंट को जनरलाइज कर सकते? शायद नहीं। थोड़ा सोच इसके बारे में। Right now you can, because this is complete graph. We are dealing with the complete graph K5, is it? सर कंप्लीट ग्राफ के लिए हम ये बोल सकते हैं। पर तू सुन तो सही, वो हमने एक ही स्पानिंग ट्री लिए। देख अभी मैं एक स्पानिंग ट्री ऐसे ले लूं, A E B then after D then after C. This is also one of the spanning tree, हाँ या ना? Yes, A E B ये वाला C और this is D। तो तुझे देखना है, अगर तू कोई जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा है ना, तो हर एक के लिए सही हो रहा है। तो थोड़ा सोच उसके बारे में। अब चल, हम दोनों ही अगर बात करेंगे तो बाकी के लोग छोड़ के चले जाएंगे। सो वेट, okay, let me alter my screen once again with the assignment 5. We are having 26 over here. We are having 26 over here. वो भी बाकी के बच्चे तो नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं। Okay, so as we all know that in this particular lab, our target is to complete assignment 5. We had already done with the 5th unit. We are running with our 6th unit, that is planar non-planar graph. उसमें भी काफी आगे पहुंचे हम। हमने last lecture में we had discussed about the Euler's formula, is it? So hopefully in today's session both B and C batch will complete assignment 5. Assignment 5 पूरा क्या है वो हमने डिस्कस किया था last lab में, last week में, is it? So now I'm expecting that you will be finishing this particular task. इसमें सिर्फ 10 इक्वेशन है भाई, बहुत ही सिंपल है, पर आज ये काम खत्म करना है, ठीक है? और सबमिट कहाँ करना है? वहां पे गूगल में, गूगल क्लासरूम में। मैंने शायद वो असाइनमेंट हटाया था, मुझे फिर से चलाना है। मैं अभी गूगल क्लासरूम में इस असाइनमेंट इसका नया टास्क जनरेट कर देता हूँ, आप लोग सबमिट वहां पे करेंगे। बिफोर दैट अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई डाउट है इसलिए असाइनमेंट 5 के लिए, तो प्लीज बताइए, एनी ऑफ यू।
भवदीप के अलावा अगर किसी को भी कोई इश्यू है, टॉक विद भवदीप। भवदीप को अगर कोई क्वेरी है तो अभी हम फिर से बात करेंगे भवदीप, बट अभी किसी और को मौका देखते हैं। किसी और को कोई क्वेश्चन है? आयुष, भारती, दर्शन दर्शन दर्शन, ध्रुवी, दिव्य, ईशा, कृणाल, मेघना, मोहम्मद, निधि, पेमा, प्रियंक, ऋषभ, समीर, श्रीनारायण, उजैन, विभूषा, Waldi, I'm asking all of you, if you're not having any query, then please kindly acknowledge on the chat box. We are supposed to finish this assignment in this lab only. Please let me know. You need to acknowledge at least on the chat box. I'm waiting for your reply. I'm waiting for your reply. Arjun Masura is here. Okay, not yet, not yet. Okay. If you're not having any query, then please continue with this particular class. You need to submit this with your own handwriting. Okay, take care for that. So जल्दी से काम करने लगी। अगर कहीं पे मैंने लिखा है you are supposed to identify 10 cut sets, so it is not compulsory कि you need to identify 10, is it? I'm good if you are having proper knowledge of that particular topic. कट सेट क्या है वो तुझे पता है, तो तू अगर 4-5 कर रहा है आइडेंटिफाई, तो भी I'm good with that. Yes, please. सर जैसे 7 क्वेश्चन है सर, उसमें हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, लाइक कर्ली ब्रैकेट्स में E1 E2, तो वो एक कट सेट हो गया। हाँ, पर E1 E2 तू सिर्फ इतना लिख देगा। तुझे सॉल्यूशन में तुझे ग्राफ पहले तो ड्रॉ करना है, फिर सॉल्यूशन में जो तूने ग्राफ ड्रॉ किया उसमें तू एजेस को लेबल करेगा, इज इट? यस सर। फिर कट सेट तो इतना ही है बेटा, वो उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द स्केच ऑफ ग्राफ, नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए उसकी, ठीक है? सिर्फ कट सेट ही चाहिए। Just need to give me that particular set. Okay, so hopefully you guys are clear. Continue with this. I had already shared this assignment. Again, if you are not comfortable from the screen, तो ये वाला पूरा एक PDF आपके पास already है। नहीं है तो मुझे बताओ, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। But continue with this, and I'm expecting that आज लैब खत्म होने से पहले ये काम हम पूरा करेंगे, ठीक है? So I'm muting myself. Bhavdeep, अगर तुझे कहीं पे भी कोई भी query है बेटा, I'm just here, okay? Just feel free to talk with me. कहाँ पे भी कोई भी query है, not just Bhavdeep, all of you. क्वेश्चन नंबर 8 बता दो ना सर, उसमें question 8. Let me go through question 8. What is question 8? Question 8. Every cut set in a connected graph must contain at least one branch of the every spanning tree. अब मैंने यहाँ पे नहीं, ये वाला गलत क्वेश्चन। टीथ निकाल देना भाई सर, कोई बच्चा। I'm not in need of that. 8 question is not there. Okay, so now the questions are only 9. वो वाला मैं एक और क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था, उसमें गलती से डाल दिया, मैंने चेंज कर दिया अपने असाइनमेंट में। मैं अपडेटेड भेज दूंगा अभी आपको, आपके पास जो है उसमें से 8 कैंसिल कर देना, ठीक है? चलो कंटिन्यू करो। म्यूटिंग माई सेल्फ ताकि आपको मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस ना आए।